వెల్కమ్ టు నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ. నేను భారతీదేవి. స్వతంత్ర సమయంలో ఆదివాసులు కీలక పాత్ర పోషించారని ఉపకులపతి ఆచార్య మొక్క జగన్నాథరావు అన్నారు. నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ మరియు ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయ సంయుక్తంగా విద్యా కళాశాల ఆధ్వర్యంలో భారత స్వతంత్ర పోరాటంలో గిరిజన వీరులు అనే అంశంపై నేషనల్ సెమినార్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా వీసీ మొక్క జగన్నాథరావు మరియు విశిష్ట అతిథిగా మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సీఎస్టీ న్యూఢిల్లీ డాక్టర్ రూప్ నారాయణ్ జీ మన్వే హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలని ఇప్పుడు చూద్దాం. నా పేరు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ వరహాలధర, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ జాతీయ సదస్సుకు నేను కన్వీనర్గా వ్యవహరిస్తున్నాను. ఈ జాతీయ సదస్సు నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ న్యూఢిల్లీ, ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం రాజమహేంద్రవరం సంయుక్తంగా నిర్వహించబడింది. ఈ సదస్సుకు వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం వారు సహకరించారు. ఈ సదస్సుకు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ప్రొఫెసర్ మొక్క జగన్నాథరావు గారు అతిథిగా హాజరయ్యారు. అదేవిధంగా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ న్యూఢిల్లీ నుంచి రూప్ నారాయణ్ మాండేవ్ నేషనల్ కమిషన్ మెంబర్ న్యూఢిల్లీ నుంచి హాజరు కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ సదస్సుకు ఈస్టు వెస్టు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అనేక మంది విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, అదేవిధంగా నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చారు. అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ కూడా, ట్రైబల్ ఎంప్లాయీస్ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది. సుమారు 400 నుంచి 500 మంది ఈ సదస్సుకు హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ సదస్సు ఏంటంటే భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఆదివాసీలు అనే అంశంపై నిర్వహించాము. దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము ఏంటంటే ఆదివాసీల యొక్క ఉనికిని ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో నిర్వహించడం జరిగింది. అయితే ఈ సదస్సులో ఎన్సీఎస్టీ నుంచి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి రూప్ నారాయణ్ గారిని మా విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి వారు మా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎన్సీఎస్టీ నుంచి ఒక ట్రైబల్ మ్యూజియంని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కోరగా రూప్ నారాయణ్ గారు ఖచ్చితంగా దానిని ఉన్నత అధికారులతో మాట్లాడి మీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక మ్యూజియాన్ని, ట్రైబల్ మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి తెలియజేశారు. ఇక చూసుకున్నట్లయితే ఈ సదస్సులో అనేక మంది విద్యార్థులు కూడా పాల్గొన్నారు. మా ఉపకులపతి వారు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఖచ్చితంగా ఆదివాసీ అమరవీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క స్ఫూర్తితో మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకొని ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పి విద్యార్థులకి మా ఉపకులపతి వారు సూచించడం జరిగింది. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆణిముత్యాలతో ఆచార్యవరులతో, ఆణిముత్యాలతో ఆచార్యవరులతో వాణి నివాసమై వర్ధిల్లు గురుకులం, వర్ధిల్లు గురుకులం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆర్షధర్మ స్ఫూర్తి ఆంధ్ర భారత కీర్తి, ఆర్షధర్మ స్ఫూర్తి ఆంధ్ర భారత కీర్తి. అడుగడుగున సంఘ సంస్కరణ దీప్తి, భవనాల తోరణం సువిశాల ప్రాంగణం,
భవనాల తోరణం సువిశాల ప్రాంగణం ప్రకృతి ఒడిలో విశ్వ పరిశోధనాలయం ఆది కవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం పలు కళాశాలలతో పలు శాఖలతో విలసిల్లే అత్యున్నత విద్యాలయం విశ్వవిద్యాలయం మన విశ్వవిద్యాలయం రాజమహేంద్రానికే రాజసమీయాలయం రాజమహేంద్రానికే రాజసమీయాలయం లక్షల విద్యార్థులున్న అక్షర దేవాలయం లక్షల విద్యార్థులున్న అక్షర దేవాలయం అక్షర దేవాలయం ఆది కవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం Welcome to the National Seminar on Tribal Heroes in Indian Freedom Struggle. On the dais, the president of today's function, Professor P. Ashok Vidisha of Adi Kavi Nannaya University, and today's most important and distinguished guest from NCST, Sri Roop Narayan Ji, and Dr. P. Vijayanamala, Dr. K. Subbarao, and Sri M. Sudhakar, Sri M. Sannyasi Naidu, and convener of today's seminar, Dr. Varahal Dora. As we know, the freedom struggle, many people fought for the freedom of this country. The tribal heroes who fought for the Indian freedom have not been known much, and nobody has taken interest to bring out the sacrifices, their contribution in the freedom struggle. So this is the greatest initiative by the NCST and in collaboration with the Vanavasi Kalyana Ashram and Adi Kavi Nannaya University together. Today we are conducting such a great seminar to remember, to know about these great heroes. And there are many heroes from different parts of the tribal belts of this nation. They initially, it can be said, it is the very beginnings of the freedom struggle when they resisted the Britishers. When the Britishers are encroaching into their very culture, their region, to exploit the resources and to damage, to interfere in the lifestyle, the resistance started. So that is the very first stage of freedom struggle. When we are talking about the tribals, they are the Adivasis, they are the sons of the soil. They live in a very tough life, in a difficult terrain. They have the greatest valor, they have the courage to live in an areas, in the hilly regions,
where we cannot live. They have that kind of courage and valor to live in the tough terrains among with the animals, wild animals, and still they survive. And they have such kind of courage. Naturally, they have such kind of courage to fight with intruders, like any Britishers or anyone else. So such leaders, when Marahal Gora came and requested for this kind of seminar, and I felt it's the greatest opportunity for the Adikavi Nannaya University to host. And this is where we have realized, and I congratulate all the organizers and especially Sri Rup Narayan Ji for giving this opportunity to us. Rup Narayan, when briefly I discussed with him, he is a multi-talented person. He is a multi-talented person. He is a doctor. He is a pathologist. He worked in various pathology laboratories, and also he was in charge for blood banks. And I have seen his talent in the photography. He is a wildlife photographer, and he has seen, and I have seen his number of wildlife pictures, which are no less than the quality of the National Geographic. Maybe I request Rup Narayan Ji to give some of those pictures so that they can be published in our in-house magazine, Nannaya Vadu, if he accepts that. And also, he is a great person, and he is a poet by himself. He wrote many number of poems, and he is a writer. And he is also a sports person. So these many talents are there in the Rup Narayan. Let us also give him advance birthday wishes. Tomorrow is his birthday. Happened tomorrow is his birthday, so let us give his advance birthday wishes. Thank you very much. So when you come to the tribal heroes, already Rup Narayan Ji mentioned many of them, and Birsa Munda, and you have Sidhu Murmu, Tika Machi, Telanga Kharya, and from our own Telangana region, who is our hero? Yes, that is our hero, Komaram Bhim. Many others are there, even many tribal persons and tribal heroes or tribal warriors worked with Allur Sita Ramaraju. They are also to be remembered now because we are from that region. And because many చాలా మంది ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి తెలుగులో కొద్దిసేపు మాట్లాడితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. మీరంతా వచ్చారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఈ సెమినార్ ఎందుకోసమో మీకు అర్థమైందా? మీ అందరికీ అర్థమైందా? యా, ఈరోజు మనం అందరం, ఎందుకంటే ఎంతో మంది గిరిజన వీరులు మన స్వాతంత్ర ఉద్యమం కోసం స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాడడం జరిగింది. వాళ్ళ పిక్చర్స్ అన్ని, వాళ్ళ బొమ్మలన్నీ మీ చుట్టూ పెట్టడం జరిగింది. మీరు కావాలంటే వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి అవన్నీ చూడండి. చూస్తే ఎంతమంది గిరిజన వీరులు మన స్వాతంత్రం కోసం పనిచేశారో మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ఈరోజు ఒక స్వేచ్ఛా భారతదేశంలో ఉన్నామంటే వీళ్ళందరి యొక్క సాక్రిఫైస్, వీళ్ళందరి త్యాగాల వల్లనే మనం ఈరోజు ఈ స్వాతంత్ర ఫలాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం. మీలో చాలామంది ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాము, మనం మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాము అనుకుంటే దానికి కారణం
ఇటువంటి స్వాతంత్ర భారతం, ఈ స్వాతంత్ర భారతం రావడానికి ఎంతోమంది శ్రమించారు. వాళ్ళలో ఈ గిరిజనులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఇన్నాళ్ళు మనం పెద్దగా గుర్తించలేదు, వాళ్ళని కూడా మనం గుర్తించాలి అనే సదుద్దేశంతోనే ఈ సెమినార్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇక మీదట అయినా మీరంతా యంగ్స్టర్స్, మీరంతా యువత, మీరు వీళ్ళందరినీ చూసి ఒక స్ఫూర్తి పొందాలి. స్ఫూర్తి తెచ్చుకొని మీరు ఏం చేసినా, ఏ పని చేసినా, వాళ్ళు అటువంటి కష్టాల్లోనే వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్తో ఫైట్ చేసి మనకు స్వాతంత్రం రావడానికి సహకరించారు. కాబట్టి ఇటువంటి సెమినార్లలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఆ స్ఫూర్తి పొందాలి. మీరు ఈరోజు చదువుకుంటున్నారు, ఆ చదువులోని మీ యొక్క ఆ టాలెంట్ అది చూపించి అత్యంత ఉన్నతమైన స్థానానికి ఎదగడానికి ఈ ఇన్స్పిరేషన్ మీకు ఉపయోగపడాలి. కాబట్టి మనం ఈరోజు కూడా చాలామంది మాట్లాడారు. ఈరోజు కూడా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మన ట్రైబల్స్ గురించి పనిచేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వనవాసి కళ్యాణ యోజన కానీ వేరే అదర్ పనిచేస్తున్నాయి. కానీ ఇప్పటికీ కూడా మనం ట్రైబల్స్ గురించి విన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా వెనకబడి మాత్రమే ఉన్నారు. వాళ్ళకి మరింత సహకారం అందించవలసిన అవసరం ఉంది. సో మనము చేయవలసింది, ఈ ట్రైబల్ విద్యార్థులు, ఇక్కడున్న విద్యార్థులంతా కష్టపడి చదువుకొని ఒక అత్యంత ఉన్నతమైన స్థానాలకి మీరు వెళితేనే మీ యొక్క జాతిని మీరు రక్షించుకునే అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి మీ జాతి మీద మీకు ఎటువంటి అభిమానము, ప్రేమ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ జాతిని ఉద్ధరించాలంటే ముందు మీకు అధికారం రావాలి. మీరు పాలిటిక్స్లో కానీ లేదంటే మంచి ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ లాంటి పొజిషన్స్లో కానీ వెళ్ళి మీ జాతికి సేవ చేసే అవకాశం వస్తుంది. పర్ఫెక్ట్గా, ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి. అందుకోసం మీరు కష్టపడి చదివి పైకి వచ్చి మీరు ఎవరికి తక్కువ కాదు, మీరు అందరికంటే ఎక్కువ అనే నమ్మకంతో మీరు పని చేయాలి. మీరు ఎవరికి తక్కువ కాదు, మీకు చాలా టాలెంట్ ఉంది. ఆ టాలెంట్ని మనం ఉపయోగించుకొని మనకున్న అవకాశాలు, రాజ్యాంగం ఇచ్చిన అవకాశాలు పుణికిపుచ్చుకొని మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళి మీ యొక్క జాతిని, మీ యొక్క రీజియన్ని, మీ తల్లిదండ్రులని, మీ సమాజాన్ని ఉద్ధరించి మరింత స్ట్రాంగ్గా తయారవడానికి మీ యొక్క కృషి మీరు చేయాలి. ఉన్న అవకాశాలన్నీ పుణికిపుచ్చుకోవాలి. అదే నేను మీ అందరికీ ఇచ్చే సందేశం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. Our very respected chief guest, Professor M. Jagannatha Rao, guest of honor, Professor T. Ashok, Dr. P. Vijaya Nirmala, Professor K. Subha Rao, Shri M. Sanyashi Naidu ji, Shri Mari Subhakar ji, and our convener, Dr. R. S. Varhanandura, and all the members of the Vanvasi Kalyan Ashram and my dear students. I come from Jabalpur in Madhya Pradesh, and my ancestors, I belong to the Gadha Gondwana dynasty of the Madhya Pradesh. My ancestors migrated 700 years ago from the Bhadrachalam of his undivided Andhra Pradesh. So you all are related to my ancestors, and I am feeling like my own home here 1000 kilometers away. हाल ही में हमने जनजातीय गौरव दिवस को मनाया है। जनजातीय गौरव दिवस को मनाया है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। 4 पंक्तियां जो जनजातीय गौरव दिवस पे, क्योंकि मैं कवि भी हूँ हिंदी में, और हम एक कवि, आदि कवि नगन्या की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो 4 पंक्तियां जो मैं सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा हिंदी आपके लिए मजबूरी होगी, लेकिन काम चलाना पड़ेगा। धर्म वही है और प्राण वही है, धर्म
बिरसा के तो ख्वाब वही हैं, संस्कृति के हैं हम सब रक्षक। संस्कृति के हैं हम सब रक्षक, दूर ही रहे अब तो सारे भक्षक। संस्कृति है पहचान आत्मा की, संस्कृति है पहचान आत्मा की। चलो संस्कृति का ध्वज लहराएं, आओ सब बिरसा बन जाएं, उल गुलाम की एक नई क्रांति। जब हम भारत देश के इतिहास के बारे में सोचते हैं और यह जनजातियों का भी हमको इतिहास पढ़ना है, तो हमको दो चीजें बड़ी समझने की जरूरत है। पीछे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है थोड़ा इंग्लिश, क्योंकि मेरे पास डेफिशिएंसी है, मुझे तेलुगु नहीं आता, ठीक है। और तेलुगु का सब्स्टिट्यूशन जब हम सोचेंगे तो हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और इंग्लिश का जो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो माफ करिएगा, हिंदी का जब सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जब मैं माँ गोदावरी के तट पे अगली बार आऊँगा तो मैं तेलुगु में ही रहूँगा, क्योंकि मैं जिस गोंड जनजाति से मैं हूँ खुद, वह हमारी जनजाति के जो लोग लैंग्वेज है उसमें सबसे ज़्यादा शब्द जो है वो तेलुगु से। लेकिन हम 700 साल से बाहर रह रहे हैं तो उस चीज़ को अच्छे से अभी हम ग्रहण नहीं कर पाए हैं। तो इतिहास को जानने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो यह रहता है कि जो इतिहास है इस देश में वो जनश्रुति में है, जनश्रुति जिसको हम सेइंग्स कह सकते हैं, और दूसरा है लिपिबद्ध जो रिटर्न है। और जनजातीय समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि बहुत लंबे समय तक, बाकी हिंदुस्तान में तो लिपिबद्ध थोड़ा जल्दी हो गया, हमारे यहाँ लिपिबद्ध थोड़ी लेट। तो जब हम जनश्रुति की बात करते हैं तो जनश्रुति से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इस देश में पहला व्यक्ति कब आया, कौन मूल निवासी है। लेकिन क्या हमने से किसी ने कभी ये सोचा है कि इस देश में संस्कृति की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, हमने जो कार्यक्रम का प्लान किया था उसके पीछे हमारे कुछ मकसद थे। एक मकसद ये भी था कि जनजातीय समाज के बीच से कुछ भ्रम निपटाना, तो उन भ्रमों को मिटाने की कोशिश करेंगे। जो देश की संस्कृति है, जैसा मैंने बताया, जनश्रुति। जनश्रुति का मतलब क्या होता है कि कोई किसी से कह रहा है, दूसरा सुन रहा है। Somebody is telling and another one is listening. That is जनश्रुति। तो आप सोचिए कि हम सभी जितने भी, और मैं जहां जहां जनजाति शब्द बोलूंगा, क्योंकि मैं जनजाति शब्द ज्यादा प्रयोग करता हूं, उसका मतलब आदिवासी शब्द माना जाता है आप लोग के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे लोग जनजाति शब्द में पे ना समझते हो, तो आदिवासी शब्द को उसको समझे। तो जब जब जनजातीय समाज की हम बात करते हैं, तो ये जनश्रुति की बात करते हैं, तो हम सभी जनजातियों में सबसे जो प्रमुख है, पूरे भारत को जोड़ने वाले जो एक देव है, उनका नाम है महादेव, आदिदेव। तो आदिदेव जब माँ गौरा से कहते हैं तो उसे कहते हैं आगम। जब आदि शंकराचार्य से भी पूछा गया कि इस देश में संस्कृति की शुरुआत कहां से हुई, तो उन्होंने कहा आगम से हुई। तो शंभू गौरा से कहते हैं कि ये देखो, ये आदिम लोग किस तरह से रह रहे हैं, मैं तुमको इनके जीने का तरीका बताता हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से रह रहे हैं ये दुनिया में सबसे सुखी जीवन जीने का तरीका है। इसी से जिंदगी में खुशी रहती है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। ये भगवान शंभू गौरा को बताते हैं, और जब बताते हैं तो उसे कहते हैं आगम। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आगम इस देश की संस्कृति की शुरुआत है? पहला तो ये कि ये आदिम व्यक्तियों के रहने का तरीका है, जो रहने का तरीका है वही संस्कृति है। दूसरा ये कि हम किसी भी संस्कृति को उठा लें इस देश के अंदर, बौद्ध है तो उनके अंदर आगम है, जैन है तो उनके अंदर आगम है, और हिंदू है तो उनके अंदर आगम है। तो उस देश की कोई सी भी संस्कृति है, सबका उदय कहां से हुआ है? आदिम संस्कृति से हुआ है। और आपको इस बात पे गर्व होता है
कि आपके पूर्वजों से इस देश की संस्कृति बनी है, तो एक बार सभी लोग जोर से अपने लिए ताजी लगाएं। जब हम जनजातियों को समझ में आया कि इस देश की संस्कृति हमारे ऊपर निर्भर है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी भी समझी। और जिम्मेदारी में क्या समझा कि हम एकात्म में रहेंगे। एकात्म रहेंगे तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम में कम से कम बदलाव होगा। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक अलगाववाद में रहना जनजातीय समाज के लिए मजबूरी है, तो सच्चाई यह है कि अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय ने ये चुना कि हम एकात्म में रहेंगे ताकि इस देश की सांस्कृतिक धर्म जो है वो सुरक्षित रह सके। ये एक आपको गुण बता दिया मैंने। और हम जानते हैं कि देश की संस्कृति में चाहे हमारे आदिदेव हो तो वे पहाड़ में रहते हैं, एकात्म में रहते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हैं। भगवान विष्णु रहते हैं तो वो क्षीर सागर में रहते हैं, एकात्म में रहते हैं। गौतम बुद्ध अपना ध्यान लगाते हैं तो वो एकात्म में लगाते हैं। दीक्षा देते हैं गौतम बुद्ध तो एकात्म में कर देते हैं। और भगवान महावीर स्वामी जब वो धर्म की शिक्षा लेते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं तो वो भी एकात्म में लगाते हैं। सारी संस्कृति जो है वो एकात्म के ऊपर निर्भर थी, और इनके एकात्म का पालन करने के लिए किसने प्रण ले लिया? जनजातीय समुदाय ने ले लिया कि हम अपनी संस्कृति, अपने सांस्कृतिक धर्म की रक्षा के लिए एकात्म में रहेंगे। हमको जो भी कीमत चुकानी होगी हम चुकाएंगे। ऐसे जनजातीय समाज के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं। अब हम आते हैं लिपिबद्ध रिटर्न में क्या है हमारे पास सबसे पुराना है, हमारे पास तो रामायण है, महाभारत भी है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है कि उसमें जनश्रुति ज़्यादा है और जो वेरीफाइड चीज़ें हैं वो कम है, ऐसा कुछ लोगों को सोचना है। तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए उसके आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जो रिटर्न स्क्रिप्चर मिलता है वो मेगास्थनी इंडिका का मिलता है। मेगास्थनी इंडिका में लिखते हैं कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वो सारा विश्व जीत के जब वो अफगानिस्तान की बॉर्डर में पहुंचे तो वो उसके आगे नहीं बढ़ पाए। और आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि वहां पे आदिवासियों का राज था। वे रोज उस घने जंगल में घुसते और उसकी भूल भुलैया से लड़के बाहर नहीं निकल पाते। तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि यदि आपको यहां से अंदर घुसना है तो आप इनसे जंग में नहीं जीत सकते, आपको इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। ना ये किसी तरह से लोक में आ सकते हैं, ना आप उनसे लड़के जीत सकते हैं, आपको इनसे मित्रता करनी पड़ेगी। ऐसे भारत के भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा के लिए सबसे अग्रणी खड़े होके देश के लिए खड़े होने वाले जनजातीय समाज है, और उसके लिए एक बार तालियां फिर से बनती है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में प्रवेश के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले जनजातीय समाज से मित्रता की, उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि अब हम इसके आगे हमको जाना है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना आपके देश को, हमारा तो लक्ष्य सिर्फ विश्व विजय है, हम विश्व विजय के बाद लौट जाएंगे करके। जब तक बिना उनके साथ गुजारिश किए बिना वो देश में नहीं घुस पाए। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में युद्ध लड़ने के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उनको एक जहरीला तीर लग गया। मजे की बात है कि उनको जब जहरीला तीर लगा वो भी एक तक्षक जनजाति के शूरवीर ने मारा और वो धराशायी हो गए। अब लोग कहने लगे कि इनकी जान कैसे बचाई जाएगी। तो पता चला कि इनको इससे जहर का जो कोड है वो एक ही जगह मिल सकता है। उस समय के
पुलस्त जनजाति कहलाती थी। पुलस्त जनजाति यही उनका जहर का तोड़ निकाल सकता था, जो कि आज की गोंड जनजाति है, उसको पुलस्त जनजाति, उसके बचाने पे अलेक्जेंडर बचे, उस जहर का तोड़ बचाया और उन्होंने उनको हिदायत दी। इसलिए अलेक्जेंडर आखिरी में, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छी बात बता दूं कि कभी रिसर्च करके देखिएगा कि अलेक्जेंडर का पुलस्त लिखा जाता है, वो पुलस्त इसीलिए लिखा जाता है कि उस पुलस्त जनजाति के व्यक्ति के द्वारा उसकी जान बचाई गई। उन्होंने तो हिदायत दी कि आप इस जहर के तोड़ को लेके भी आप विदेश से भाग सकते हैं, आप यहाँ रुक जाएं, जब पूरे ठीक होंगे तब जाएंगे। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट उनकी बात नहीं माने और वो चल दिए अपने देश वापस लौट के, और हुआ वही जो जनजाति के एक वैद्य ने कहा था कि 14 दिन बाद अलेक्जेंडर समाप्त हो। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है कि हमारे पास ऐसे शूरवीर थे, हमारे पास ऐसे वैद्य थे जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया है। अब आते हैं अगले कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, हम सभी जानते हैं। चाणक्य, तो उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य से कहा, अपनी उनकी पुस्तकों में लिखा है, रिटर्न इतिहास है इसका, कि ये जो आटविक रहते हैं आपके राज्यों के आसपास, आप इनसे लड़ाई नहीं कर सकते, आपको इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पड़ेंगे। और जब भी आपको अपने गृह युद्ध या विदेशी किसी आक्रमणकारी से लड़ना होगा तो सबसे पहले आटविक सेना को भिजाना पड़ेगा। आटविक यानी आरण्यक, उस समय की जनजाति से, क्योंकि इस सेना की खासियत है कि ये किसी के लोभ प्रलोभ में नहीं आते, ये किसी के हाथों में नहीं बिकेंगे, ये अपने राजा के लिए वफादार हैं। दुनिया की सबसे वफादार जो समुदाय है वो जनजाति है। ये खुद चाणक्य अर्थशास्त्र में कहते हैं, ऐसे वफादार समुदाय के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से ताली बजाई जाए। फिर आते हैं हम अकबर के लिए। अकबर आईने अकबरी में लिखते हैं कि हम जब उन्होंने इस देश में राज किया तो उन्होंने सिर्फ शहरों तक ही राज किया, कभी भी वन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अधिसत्ता जमा नहीं पाया। और इसलिए जो जनजाति समाज है वो कभी भी उनका एक तरह से उनके राज्यों के अंतर्गत नहीं आया। सिर्फ एक कुछ गिने चुने राज्य थे जो कि मुगलों के साथ दो हाथ कर रहे थे। उनमें से एक वंश सबसे प्रमुख है, जो सबसे बड़ा है, वो है गड़ा गोंडवाना राजवंश, जिसका मैं खुद वंशज हूँ। तो हमारे जो मेरी पूर्वज थी, आप सभी नाम जानते होंगे, खासकर विशेषकर महिला वर्ग में जो बहुत प्रचलित नाम है, रानी दुर्गावती मंडावी। ये रानी दुर्गावती मंडावी जो है, इन्होंने अकबर से लड़ाई करी और 3 बार उन्होंने मुगलों की सेना को हराया। सिर्फ इतना ही नहीं, मालवा के जो राजा हैं बाज बहादुर, उनको उन्होंने 17 बार हराया और 17 बार उन्होंने उनको जीवन दान दिया। ये युद्ध लड़के जीत के और जीवन दान देने की जो प्रथा है ना, वो भी एक जनजाति समुदाय के द्वारा चलती है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि 700 वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज, my ancestors have migrated from Bhadrachalam. The name of my ancestor is Yadu Rao, who started the Gada Gondwana dynasty. तो जब यदु राव जो हैं, अब आप सोचिए कि वो भद्राचलम से मंडला तक क्यों गए। तो मैं आपको बताऊंगा कि उस समय कोई भी इस खतरे को भाप नहीं पा रहा था। सिर्फ एक जनजातीय समुदाय का एक व्यक्ति है, वो इस खतरे को भाप गया कि जो भारत देश में जितने भी आक्रमण होते हैं वो उत्तर पश्चिम से होते हैं। जो भारत देश के मूल राजा हैं वो कभी भी जनता के ऊपर मारकाट नहीं मचाते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं करते हैं, जो धार्मिक प्रतिष्ठानों के ऊपर कभी तोड़फोड़ नहीं करते हैं।
लेकिन जो तोड़फोड़ करते हैं, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, जो विदेशों से आक्रमणकारी आते हैं, वो उत्तर पश्चिम से आते हैं। तो यदुराव ने ये मन में तय कर लिया कि मेरे राज्य की सबसे उत्तर पश्चिम की जो सीमा होगी मैं वहां जाऊंगा और विदेश से आने वाला कोई भी आक्रमणकारी होगा उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। ये इस देश के एक जनजातीय समुदाय के राजा का एक योगदान इस देश को, जिसने पहचाना कि बाहरी आक्रमणकारियों से कैसे लड़ना है। और यही उनके अंदर की ऊर्जा थी जो कि उनके ही वंशज, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, रानी दुर्गावती मंडावी, उन्होंने किया। उन्होंने मुगलों से लड़ाई की और उनका भी इतिहास है। वे जिस चंदेल राजघराने की थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी से लेकर शेरशाह सूरी तक सारे विदेशी आक्रमणों से लड़ाई की। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए सबसे चंदेलों ने लड़ाई की। और चंदेलों के मुख्य सहयोगी कौन थे? गड़ा गोंडवाना। राजा संग्राम शाह ने अपनी पूरी सेना भेज दी थी शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ने के लिए चंदेलों के साथ। और उन्हीं चंदेलों की भूमि जहां पे रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, उसी किले में शेरशाह सूरी का आखिरी में अंत हुआ। और 2-3 उसमें थ्योरी है, लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से ये भी है कि उस शेरशाह सूरी का वध असली में रानी दुर्गावती मंडावी ने ही किया था। ऐसा इतिहास में भी लिखा हुआ। ये भी एक योगदान है। अभी तक मैं आपको बता रहा था तो आपको ये भी लग रहा होगा मन में कि बात तो स्वतंत्रता संग्राम के हीरो की चल रही है, फिर ये बाकी मुद्दे कहाँ से आ गए? तो मैं आपको पहले बता रहा था कि इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातीय समुदाय ने अपना प्रण लिया था कि एकात्म में रहेंगे। जब उनको लगा कि हमको एकात्म से बाहर निकलना चाहिए, तो राजा यदुराव अपने एक राज्य बना के मंडला में उन्होंने डेरा जमा लिया। तो इस देश में लोग समझते हैं कि सिर्फ अपने भौगोलिक रक्षा करने से ही इस देश की रक्षा है, वो वही हमारे देश की स्वतंत्रता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल, जंगल, जमीन, रहने वाले लोग और उनकी संस्कृति, ये पांचों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है। और इन सब के लिए लड़ाई जो किसने लड़ी है? वो जनजातीय समुदाय ने लड़ी है, आदिवासियों ने लड़ी है। उसके बाद जो है, जो मुख्य आया वो अंग्रेजों का युग आया। अंग्रेजों ने 2 काम है जो जनजातीय समुदाय के विरोध में किया, जिससे उनकी संस्कृति, उनका एकात्म टूटा। जिस तरह से वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहना चाहते थे, उन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में अंग्रेज घुसे। और अंग्रेज क्यों घुसे? क्योंकि अंग्रेज भारत में आए थे खनिजों के लिए, जंगल की लकड़ियों के लिए और पैसे के लिए। तो जब वो आए तो उनको सारा सामान ले जाने के लिए, पैसा है, खनिज है, लकड़ियां हैं, सब ले जाने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। जब रेलवे लाइन बिछानी थी तो उन्हें पेड़ काटने की जरूरत पड़ी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो पेड़ काटने के लिए आए तो जनजातीय समुदाय जो है, भारत के आदिवासी समुदाय, वे पेड़ों से चिपक गए। उन्हें बोले ये पेड़ हम नहीं काटने देंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो आदिवासी पेड़ में लगे रहे और अंग्रेजों को उन लकड़ियों को काट के ले जाना था, तो उन्होंने उन पेड़ों के साथ साथ वहां पे चिपके हुए आदिवासियों को भी काटा। ये इस देश में आज तक किसी ने नहीं जाना है। हिंदुस्तान टाइम्स में इसके ऊपर 2 आर्टिकल आए हैं। लेकिन और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश की आधी पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल्स एट दैट टाइम वर मैस्करेड बाय इंग्लिशमैन to steal these teak woods and steal these minerals। उन्होंने भारत के आधे आदिवासियों को खत्म कर दिया। और जब ये भी संभव नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5वीं अनुसूची के जनक, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको लाए और उन्होंने बोला कि हम इनको एक विशेष क्षेत्र देते हैं और इस
क्षेत्र में इस देश के जो बाकी लोग रहते हैं उनका कानून लागू नहीं होता, ताकि अंग्रेज जाए और जो जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी सामने आए उनके ऊपर बिना कोई कानूनी कार्रवाई के उनके ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं होता, उनको सीधा मारा जा सके। इस मकसद से अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में काम शुरू किया और अंधाधुंध हमारे जनजाति समुदाय को उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। अब देखिए, जब तक मुगल भी नहीं आए थे तब जो भारत की जनता थी वो 1/6 भाग है, 1/6 ऑफ द whatever they are cultivating, they are paying as a tax. During Mughal, they are paying only 1/3 of the total of their cultivation. But in the British Raj, they are paying half of their cultivation. Okay? And not only the cultivation, पहले वो लोग फसल जो उगाते थे, चावल उगाते थे, चावल पे कर देते थे, गेहूं उगाते थे, गेहूं पे कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आप गेहूं उगाओ, पैसा दीजिए। तो भारत में बिचौलिए भी आ गए, मीडिएटर, जो उस अन्न को पैसे में कन्वर्ट करने लगे। तो इसमें हुआ क्या कि जो भारत का समुदाय है, भारतीय जनता है, उसको 1/6 बस जो है पोर्शन है वो उसके पास बचता था, बाकी पूरा पोर्शन है वो अंग्रेजों के पास चल जाता था। तो यहाँ से भारत के अंदर अत्याचार की शुरुआत हुई, और जब अत्याचार की शुरुआत हुई उस देश की संस्कृति में कहा जाता है कि जब जब धर्म को नुकसान होता है, और इस देश ये एकमात्र दुनिया में देश है जहाँ पे सांस्कृतिक धर्म है, तो जब सांस्कृतिक धर्म को नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं भगवान स्वरूप लोग पैदा हुए। तो भगवान जो है सबसे पहले तिलक लगा के आए तिलका मांझी। उन्होंने अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया, He denied to pay the tax। और आप देखिए कितनी विडंबना है कि इस देश में कि उस समय जो मुख्य अधिकारी होता था उसका एक ही काम होता था कि लोगों से टैक्स देना है, इसलिए उसको कलेक्टर कहते थे। और आज भी हमारे जिले का जो मुखिया होता है वो कलेक्टर ही कहते हैं। तो तिलका मांझी ने जब टैक्स देने से मना कर दिया तो उनको पकड़ के पूरे भागलपुर में घुमाया, ताकि हर जनता के सामने खौफ पैदा हो सके कि किस तरह से यदि आपने टैक्स देने से मना किया तो आपका क्या अंजाम होगा। तो ये से पूरे देश में जो विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ, उसकी एक तरह से शुरुआत जो की वो एक जनजाति नायक ने किया था, तिलका मांझी उनका नाम है। तो एक तिलका मांझी जो हमने इस देश में विद्रोह की अलग जगाई थी, उसको जगाने वाले तिलका मांझी थे। उन तिलका मांझी के लिए एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी ताली बजाएं। एक बात और, एट दैट टाइम ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ हूर, approx 6,000 tribals were killed during this revolution, and our NCERT's books keeps on giving us the information about the Plassey, War of Plassey, Battle of Buxar, in which less than I think 2,000 soldiers died. But actually India, in the whole withdrawal of the tribals, 6,000 tribals were killed during this revolt, and no one ever included this in our textbook. So 6,000, आप सोचिए कि 6,000 आदिवासी मर जाते हैं, और इस देश की 70 साल के इतिहास में उसके ऊपर से 4 लाइन लिखी जाती है। ये इस देश की विडंबना है। लेकिन उसके बाद मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में सांस्कृतिक धर्म का एक प्रकल्प है हमारे अंदर। तो दूसरे जो हुए, जब जनजातियों के पास जब फसल उगाने का नहीं बचा तो जनजातियों के पास एक अधिकार बच गया था,
वो था वनों से संपदा का दोहन कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसको भी बक्सर की लड़ाई के बाद समाप्त कर दिया। और फिर भारत के सांस्कृतिक धर्म को खतरा हुआ तो भगवान का नाम लेके ही फिर से पैदा हो गए भगवान बिरसा मुंडा। ये वो हैं जिन्होंने, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन शुड नो that approx the age of the students who are passing the college is 24 to 25, and rarely you people know there is one great tribal leader who donate his life for the country at the age of 24, that is the Birsa Munda. You are the one of the youngest freedom fighter in the history of India who sacrificed his life for the nation. तो एक जो इतने कम उम्र में अपने देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले वो थे भगवान बिरसा मुंडा। और भगवान बिरसा मुंडा के साथ मैं जो बार बार सांस्कृतिक धर्म की बात कर रहा हूँ वो भी जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बचपन में इतने गरीब थे कि उनके माँ बाप ने उनको एक जर्मन चर्च में शिक्षा के लिए भिजवा दिया, जहां उनका नाम डेविड बिरसा भी रखा गया। लेकिन वहां से जाने के बाद आप सोचिए अभी कि हम 9 साल में हम क्या कर सकते हैं। 9 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ये जान गए कि ये क्रिश्चियन मिशनरी है, ये हमसे हमारी संस्कृति हमारा धर्म छीन लेंगे, लूट ले जाएंगे। और उन्होंने 9 साल की उम्र में अपना विद्रोह शुरू किया और कहा टोपी टोपी एक समान। सिर्फ 9 साल की उम्र में, only at the age of 9 years, he understand that these Christian missionaries are taking their culture. तो जब भगवान बिरसा मुंडा अपने विद्रोह कर रहे थे, उसके बाद जब उनका, आप जानते हैं उनके विद्रोह का अंत कैसे हुआ। जब उनको पकड़ लिया गया तो पकड़ने के बाद उनको 2 दिन तक की यातनाएं दी गई। और यातनाएं क्या दी गई कि आप अपनी संस्कृति, अपना सांस्कृतिक धर्म छोड़ दीजिए, आप अपनी संस्कृति, अपना सांस्कृतिक धर्म छोड़ दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं इस देश के जनजाति नायक, इस देश का जनजाति समुदाय ऐसा है जो मर जाएगा लेकिन अपना सांस्कृतिक धर्म नहीं छोड़ेगा। भगवान बिरसा मुंडा ने अपना सांस्कृतिक धर्म नहीं छोड़ा। और वहीं के एक पादरी ने उन्हें आखिर में जहर देके 24 साल की उम्र में उन्होंने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इस तरह से अंग्रेजों के युग में खनिज लकड़ी भोजन के लिए हैजा के नाम पे जो हम कर चुकाते थे, उसकी वजह से अकाल आया। अकाल की वजह से ऐसे करते करते जनजाति समुदाय जो है, सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय को नुकसान पहुंचाया है वो अंग्रेजों ने पहुंचाया है। और इसके खिलाफ जब पहली जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई, जिसको इतिहास में इतिहासकारों ने अंकित किया, वो था फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल, फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ द इंडिया। तो जब उसकी बात आती है तो उसमें भी एक नाम आता है। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें एक नायक ऐसे भी थे जिनको तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। एक नहीं, दो शासक थे और उनके लगभग 36 रियासतदार थे ऐसे जिनको तोप से मुझसे उड़ा दिया गया। और मैं आपको बड़े ही गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि तोप के मुंह से इस देश की माटी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी एक जनजाति थे। उनका नाम था राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं उनका वंशज हूं। मैं जिस जबलपुर में से आया हूं, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, द जबलपुर, at the same spot, at the same location,
Raja Shankar Shah, Raja Raghunath Shah sacrificed their life for the nation in the first freedom fighter. इसके बाद भगवान की बहुत अच्छी कृपा है कि मुझसे पहले डॉक्टर डोरा का उद्बोधन हो गया। मुझे तेलुगु कम समझ में आती है, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि इसके बाद में तोमाराम भीम, हल्लेलू, सीताराम राजू और गम मनु डोरा, मरी कमला, इनके बारे में जिक्र करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बहुत विस्तार से बता दिया। एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि थोड़ी सा और आप सुनना चाहेंगे तो, कि जब मैं मध्य प्रदेश में बोलता हूँ तो मेरे मित्र लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वहाँ के हिसाब से मेरी स्पीड तेज है। और आज जब मैं यहाँ पे डॉक्टर डोरा को सुन रहा था और उसके पहले के उद्बोधन सुन रहा था, तब मुझे समझ में आया कि मैं जेनेटिकली यहाँ का हूँ, इसलिए मैं वहाँ की स्पीड से बहुत तेज बोलता हूँ। इसके बाद से दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, बच्चियां, girls there, please you have to listen some more words. गुरु गोविंद, जो कि राजस्थान बांसवाड़ा में एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी इस देश की आज़ादी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। और जब वो लड़े और जब वे अपनी सभा चला रहे थे तो 1500 ट्राइबल्स उनके साथ थे जो उनकी सभा सुन रहे थे। और उन 1500 ट्राइबल्स में को ठीक वैसे ही जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों की हत्या की गई थी, उसी तरह से आदिवासियों को 15,000 आदिवासियों को उस समय समाप्त कर दिया गया। और ये संख्या जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी यही विडंबना है कि कहीं भी किसी पुस्तक में यह अंकित नहीं किया गया है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जगह मैं चाहता हूँ कि भारत में शहीद होने वाले गुरु गोविंद और उनके साथ शहीद होने वाले जनजातीय समुदाय को याद रखा जाए, ये आपसे मेरी गुजारिश है। एक नाम और लेना चाहूँगा, क्योंकि हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो हम कई क्षेत्र छोड़ देते हैं। एक नाम और है रानी गौंडेन्यू। थोड़े प्रोनाउंसिएशन में मुझे भी तकलीफ हो रही है। नॉर्थ ईस्ट की ये रानी थी, इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। और आपको गर्व होगा कि ऐसी लड़ाई लड़ी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू gave him the remark of Rani. Although she is not a Rani, she is not an emperor, but she was awarded as a Rani by first Prime Minister of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारा जो आज का कार्यक्रम था, डॉक्टर डोरा ने काफी हमारी मदद कर दी। तो मकसद ये था कि हमने जब NCST के साथ हमने कार्यक्रम बनाया, क्योंकि NCST का कोई एक्सपर्ट है तो उनके तौर पे सिर्फ मैं उपस्थित हूँ, तो जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत तो हम ये चाहते थे कि ये जो हमारे जनजातीय छात्र हैं, जो कि जनजातीय समाज का आने वाला भविष्य है, ये समझे कि हमारा कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है। इनको समझ में आए कि हमें अपने ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व करने की जरूरत है। You students need to understand that you have a very respectful past. You have a very respectful history, and you need to proud on your ancestors as well as on yourself. This is a need of the hour. Second thing, you all are students and you have to know, आपको ये जानने की जरूरत है कि अभी तक जो भारत का इतिहास है वो कभी
अंग्रेजों ने लिखा, कभी मुगलों ने लिखा, कभी विदेशी आक्रमणकारियों ने लिखा, कभी गैर राष्ट्रवादियों ने लिखा, कभी हमने अपना इतिहास कभी नहीं लिखा। तो आप लोग से हम लोग ये बोलने आए हैं यहाँ पे कि आप अपने इतिहास के लिए खुद लिखना शुरू करें। देखिए, एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब तक शेर का इतिहास शिकारी लिखता है तो वो शेर को मेमना बताता है। जब शेर का इतिहास शेर लिखता है तो वो अपने आप को बब्बर शेर बताता है। ये बात समझने की आपको जरूरत है। जब हम समझेंगे कि हमारे पूर्वज किस लिए, किस तरह से इस देश के लिए खड़े हुए, किस तरह से इस देश के लिए लड़े, तब हमें समझ में आएगा कि इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी ताकत, सबसे बड़े देशभक्त इस देश के जनजाति समुदाय है। जब हमको ये सत्य ज्ञान होगा तो हम इस देश की मुख्य धारा, इस देश के सकारात्मक कार्यों में जुड़ेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं कि मैं अपना अभिभाषण समाप्त करूं और वनवासी कल्याण आश्रम के लिए विशेषतर बोलना थोड़ी देर पहले मैंने हालांकि बता दिया कि यहाँ पे उनके एक बहुत प्रिय व्यक्ति थे लक्ष्मण जी मरका। तो हम दोनों भाई हैं और उनकी लिखी 4 पंक्तियों से मैं एक्सपोज करना चाहूँगा, इसलिए ताकि आपके साथ जुड़ा रहे कि तिमिर घना है, स्वान बहुत है, तिमिर घना है, स्वान बहुत है, तरफ तुम्हारे प्राण बहुत हैं, अवरोधों से भरा है पथ ये, अवरोधों से भरा पथ ये, शीश उठाकर चलना होगा, लाख पीठ पर वार हुए हैं, शक्ति पुत्र में प्राण बहुत हैं, मिथ्या की कालिक पल भर है, इस पथ से निकलना होगा, शीश उठाकर चलना होगा, शीश उठाकर चलना होगा।